Hello students, today I am making this video in continuation of our series of case studies. Earlier we have uploaded a case study of chapter 1st, Nature and Significance of Management. Today we are coming with chapter 2, Principles of Management, case study practice question, which have designed this year only 2020-21 session, and exams are approaching fast. In May you have your exams of business studies, so you have to remove your fear of case study. So we have started this series of case study practice. Now we are continuing this series with chapter 2. Here is your question. Read the following text and answer question number 1 to 4 on the basis of the same. ये जो पैटर्न है ये इसी साल नया CBSE सैम्पल पेपर में आया है कि एक केस स्टडी आएगी और उसके बाद उसके बेसिस पे आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे MCQ. ये सभी सब्जेक्ट्स में आया है, तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट्स में बहुत हेल्प मिलेगी किस तरह से आपको सॉल्व करना है. तो इसीलिए आपको ये केस स्टडीज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी इस सीरीज में. नाउ स्टार्ट रीडिंग. Bhasin Limited was engaged in the business of food processing and selling its products under a popular brand. Lately, the business was expanding due to good quality and reasonable prices. Also, with more people working the market for processed food was increasing. New players were also coming to cash in on the new trend. In order to keep its market share in the short run, the company directed its existing workforce to work overtime. But this resulted in many problems. Due to increased pressure of work, the efficiency of the workers declined. Sometimes the subordinates had to work for more than one superior, resulting in declining efficiency. The divisions that were previously working on one product were also made to work on 2 or more products. This resulted in a lot of overlapping and wastage. The workers were becoming indisciplined. The spirit of teamwork which had characterized the company previously was beginning to wane. Workers were feeling cheated and initiative was declining. The quality of the products was beginning to decline and market share was on the verge of decrease. Actually, the company had implemented changes without creating the required infrastructure. The management of company Bhasin Limited now realized its folly. In order to rectify the situation, it appointed a management consultant, Mukti Consultants, to recommend a restructure plan to bring the company back on the rails. Mukti Consultants undertook a study of the production process at the plant of their company, Bhasin Limited, and recommended that the company should introduce scientific management with regard to production. It suggested that planning and execution should be separated and that work study should be undertaken to optimize the use of resources. इस पूरी केस स्टडी को पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर 2 की केस स्टडी है. इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात हो रही है, उसके प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, टेक्निक्स की बात हो रही है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है. तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी. In order to keep its market share in the short run, the company directed its existing workforce to work overtime. But this resulted in many problems. Due to increased pressure of work, the efficiency of the workers declined. Sometimes the subordinates had to work for more than one superior.
तो ये लाइन पढ़ते ही आपको एक प्रिंसिपल की याद आ गई होगी, रिजल्टिंग इन डिक्लाइनिंग एफिशिएंसी। अगर मान लीजिए मोर देन वन सुपीरियर हो एक सबऑर्डिनेट के ऊपर, तो ये कौन सा प्रिंसिपल या फिर टेक्निक ओवरलुक्ड हो रही है, मतलब किस पर ध्यान, किस प्रिंसिपल का ध्यान नहीं दिया गया, बताइए। एक से ज्यादा सुपीरियर अगर सबऑर्डिनेट्स के ऊपर होंगे जिससे उसकी एफिशिएंसी डिक्लाइन हो जाएगी, तो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का जो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। आपने पढ़ा था वन मैन वन बॉस, किस में पढ़ा था ये, यूनिटी ऑफ कमांड में। तो सही आंसर क्या होगा, यूनिटी ऑफ कमांड। ये जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, ये इस केस स्टडी में क्या हो रहा है, ओवरलुक्ड। हमारे पास अब देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। नंबर 1 फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी में हमने क्या पढ़ा था कि आप लगातार अगर काम करते रहेंगे तो आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। इट मीन्स आपको बीच में रेस्ट इंटरवल मिलने चाहिए। तो यहाँ पे एक देखिए ऊपर लाइन है कि वर्क फोर्स जो है वो ओवर टाइम कर रही है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, एफिशिएंसी वर्कर्स की डिक्लाइन हो रही है। तो फैटीग स्टडी क्या है, टेक्निक है मैनेजमेंट का। तो ये भी यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, ये भी ओवरलुक्ड हो रहा है। तो सी ऑप्शन में देखिए बोथ ए एंड बी है, और डी ऑप्शन में देखिए डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटर एफिशिएंसी। तो यहाँ पे इसके बारे में कोई लाइन नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि इसमें फैटीग स्टडी की भी बात हो रही है ऊपर, क्योंकि ओवर टाइम की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है वर्कर्स को, उनकी एफिशिएंसी डिक्लाइन हो रही है। और फिर उसके बाद वो कह रहे हैं एक सुपीरियर होना चाहिए, बट एक से ज्यादा सुपीरियर है सबऑर्डिनेट के ऊपर। तो यूनिटी ऑफ कमांड ये प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट का, ये भी ओवरलुक्ड हो रहा है। तो सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, तब आंसर लिखना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन। द डिविजन्स दैट वर प्रीवियसली वर्किंग on one product were also made to work on 2 or more products। एक डिवीजन है जो पहले एक ही प्रोडक्ट पर वर्क कर रही थी, पर अब उन्हें क्या कहा गया, उन्हें कहा गया कि आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में वर्क करो। दिस रिजल्टेड इन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज। इससे क्या हुआ, ओवरलैपिंग हो गई है ना, मतलब बहुत कंफ्यूजन हो गई, वेस्टेज हो गई रिसोर्सेज की। Identify the principle of management violated here। यूनिटी ऑफ कमांड में हमने क्या पढ़ा था, वन मैन वन बॉस। तो यहाँ पर वो तो ऐसा कुछ बात हो नहीं रही। बी ऑप्शन में पढ़ा था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसमें क्या पढ़ा था, वन हेड वन प्लान। थर्ड ऑप्शन है स्केलर चेन। स्केलर चेन में हम क्या पढ़ते हैं कि जो एक ए बॉस है दो डिविजन्स का, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन करे। और डी है डिवीजन ऑफ वर्क, की वर्क किसके अकॉर्डिंग डिवाइड हो, जो आपको काम अच्छे से आता है वही स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्क डिवाइड हो। तो इस केस स्टडी में ना तो यूनिटी ऑफ कमांड की बात हो रही है, ना स्केलर चेन की बात हो रही है, ना ही डिवीजन ऑफ वर्क की बात हो रही है। इसमें किसकी बात हो रही है, वन हेड वन प्लान, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट हो रहा है। क्यों, क्योंकि पहले उनका प्लान था कि एक प्रोडक्ट पे काम करने का, अब उनका चेंज हो गया, वो कह रहे एक या दो ज्यादा प्रोडक्ट पे काम करो। तो वन हेड वन प्लान होना चाहिए, वो यहाँ नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग हो रही है, वेस्टेज हो रही है। तो इसलिए प्रिंसिपल यहाँ वायलेट हो रहा है, मतलब फॉलो नहीं हो रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नाउ थर्ड क्वेश्चन। द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क which had characterized the company previously was beginning to wane। ये हमने केस स्टडी में भी लाइन पढ़ी थी कि पहले बहुत टीम वर्क था, टीम वर्क का स्पिरिट था हमारे अंदर कि हाँ मिलके काम करेंगे, हम सबका एक कॉमन गोल है जो कंपनी का गोल है। पहले इस तरह की हमारे अंदर फीलिंग थी, पर अब वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इसका मतलब कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है। अब डिसिप्लिन में हमने क्या पढ़ा था, डिसिप्लिन में हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए, अदरवाइज पेनल्टी वगैरह चार्ज होगी हमारे ऊपर।
बी ऑप्शन इसमें गिवन है इक्विटी, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जैसे मेल है, फीमेल वर्कर है तो हमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए, है ना, इक्वल ट्रीटमेंट देनी चाहिए। सी ऑप्शन में हमने क्या पढ़ा था, इनिशिएटिव में याद है आप लोगों को कि फर्स्ट जो आपके अंदर से खुद सेल्फ मोटिवेशन आता है कि हाँ मैं ये काम करूंगा, तो वो ये सब चीजें तो इसमें डिस्कस हो ही नहीं रही हैं। डी ऑप्शन है स्पिरिट डी कॉक्स, मतलब यूनिटी स्ट्रेंथ की टीम वर्क, है ना, स्पिरिट ऑफ टीम वर्क, डी स्पिरिट डी कॉक्स। तो ये वाला प्रिंसिपल यहाँ वायलेट हो रहा है, तो सही आंसर क्या है, डी ऑप्शन स्पिरिट डी कॉक्स। नाउ fourth question. Basin Limited and recommended that the company should introduce scientific management with regard to production. It suggested that planning and execution should be separated. Which technique of scientific management is highlighted above? अगर आपने साइंटिफिक मैनेजमेंट की सभी टेक्निक्स पढ़ी होंगी तो आप ये लाइन पढ़ते ही समझ गए होंगे कि सही ऑप्शन क्या है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, इसमें आपको क्या समझाया था, क्वालिटी पे ध्यान दें, जो अननेसेसरी वर्क है उसको एलिमिनेट करें, तो ये सब चीज़ तो यहाँ हो ही नहीं रही हैं। बी ऑप्शन है फंक्शनल फॉरमैनशिप, इसमें क्या था, प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग और एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट अलग, तो यही सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, फंक्शनल फॉरमैनशिप। तो यहाँ पर आपकी ये केस स्टडी और उसके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आप इसको देखें, समझें और केस स्टडी का जो एक डर है आपके माइंड में उसको बिल्कुल हटा दीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत इजी लगेगी फिर आपको केस स्टडी। सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़िए, बाद में केस स्टडी पढ़िए, और सब उससे भी पहले आपको चैप्टर लर्न होना चाहिए, तभी आप केस स्टडी सॉल्व कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट।